जो भी हमने फाइंड आउट किया एक्चुअली प्रूविंग करनी है इन क्वेश्चन, बट टुडे वी विल टॉक अभी भी आपको सिंपली अगर इक्वेशंस दिए हो उसकी सोल्यूशन बतानी हो देन हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर. सो इक्वेशन होता क्या है मेनली, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की मैं बात कर रही हूँ. इक्वेशंस इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ओके, so in any equation when any trigonometric functions are there, functions कोई से भी trigonometric functions अगर होते हैं of a variable, okay, so trigonometric functions of variable are called trigonometric equations. Suppose if you write sin x is equals to root 3 upon 2, so this sin x is called the trigonometric equations. यहाँ पे ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है this is called the trigonometric equations. So इसकी solution find करनी होती है, यहाँ हमें x की वैल्यू बतानी होती है. So that is the solution of trigonometric equations. So again I am telling you, equations involving trigonometric functions of a variable is called trigonometric equations. So in this section, mainly in this exercise, last exercise, we shall find out the solution of such kind of equations, which is given here as an example. And we have already learned the values of sin x and cos x repeat after an interval of 2 pi and values of tan x repeat after an interval of pi. So इससे पहले हमने क्या करा था, sin x and cos x की जो value है after the interval of 2 pi it always repeats. 2 pi का मीन हो गया कि जो उसकी 2 pi की वैल्यू जो भी होगी उसके बाद फिर से वो रिपीट होती है, फिर से हम टिल 2 pi तक हम उस वैल्यू तक पहुंचते हैं. Similarly tan x में भी सेम होता है, after pi it repeats the same value again and again. So the solution of a trigonometric equation, जो solution होते हैं, next thing, so the solution of a trigonometric equation for which x जो होंगे या तो 0 से ग्रेटर होंगे तो 0 के इक्वल होंगे. ओके, सो x की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर आ सकते हैं, फिर 0 के इक्वल आएगी, और इट विल बी ऑलवेज लेस देन 2 पाई. या तो पाई से लेस होंगे तो 2 पाई से लेस होंगे, लेकिन ये 2 पाई से ऑलवेज क्या लेस होंगे. 2 पाई का मीन सिंपली हो गया 360. सो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर 0 के इक्वल हो सकती है और इट इज लेस देन 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस. सो जब भी इनके बिटवीन में जो सॉल्यूशन फाइंड होते हैं that is called principal solutions of that trigonometric equation. Okay, now the next point is the expression involving integer n. किसी भी अगर एक्सप्रेशन में इंटीजर n दी हुई होती है, सो व्हाट डज इट मीन. इंटीजर यहाँ पे n का सिंपली मीन हो गया which gives all the solution of the trigonometric equations. n की जितनी भी वैल्यू आप जो फाइंड करते हो, so all that values is called the solution of trigonometric equations and which is also termed as general solution. Okay, so n की जो भी वैल्यू फाइंड आउट होगी as an integer, जो इंटीजर के फॉर्म में शो करते हैं, एंड मेनली इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, यू नो दैट वी आर डिनोटिंग टू, टेल मी, z. So we are denoting integer by this capital Z. So this Z, capital Z represents integer here. So this is called general solution. इनके बीच की अगर वैल्यू फाइंड होती है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है. एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया था, जिसमें भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ अ वेरिएबल प्रेजेंट होंगे वो सारे इक्वेशंस क्या होंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होंगे. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड इट गौतम दीपांशु? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now tell me, what is trigonometric equation? Question पे मैं तो आऊंगी definitely, but I'm just asking. What I told you, simply you can say involving trigonometric functions of variable trigonometric equations. Principal solutions क्या होते हैं? क्या होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन? What I told you that principal solution, the value of trigonometric equations which comes under in between 0 and 2 pi is called principal solutions. It is very simple. Now general solution, what I told you, solution having the value as an integer is called general solution. Now it is clear? Yes, ma'am.
Say yes or Yes, no. ma'am. Okay. Okay, now come to the example here. For instance, we have taken this question. Find the principal solution. We have to find out the principal solution. It means we have to find the value between 0 to 2 pi. Okay. Of the equation sin x equals he was asking to you, sin x is equals to root 3 by 2. So in sine, which not I'm asking in radian. Root 3 by 2 किसकी वैल्यू होती है? किसकी होती है? Tell me. You know, Sin, sin root sin 3 by 360 डिग्री. You know, 60 डिग्री की वैल्यू इसमें होती है. अगर मैं 60 डिग्री। डिग्री हाँ, तो वही तो आपको बतानी थी, डिग्री में बतानी थी. अगर मैं मैं वो रेडियन में आपकी आवाज पूछूं, कट के आ रही थी। कट कर आ रही है. ओके, जस्ट 1 मिनट. नाउ इट इज क्लियर. yes, ma'am. Clear. यस मैम। हाँ, तो साइन रूट 3 बाई 2, जो साइन रूट 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 है, वो साइन पाई बाई 3 में होते हैं. तो वी कैन राइट हियर साइन पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू क्या होता है? पॉसिबल होते हैं ना उन सभी वैल्यू, वो आपको बताने हैं किस किस में. जैसे साइन पाई बाई 3 की वैल्यू होगी, और किस में पॉसिबल हो सकती है कि उसमें भी साइन की वैल्यू रूट 3 बाई 2 हो. So if we take in place of this pi by 3, like 2 pi by 3, अगर मैं 2 pi by 3 लेती हूँ, तो 2 pi by 3 का मीन क्या हो गया? दिस इज 360. 360 का हाफ करोगे तो कितने होंगे? सॉरी, 3 से डिवाइड करोगे तो 120. तो 120 का डिग्री 2 pi by 3 करती हूँ, तो इसको भी मैं इस टर्म में तो लिख सकती हूँ, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, isn't it? 2 pi by 3 को भी तो लिख सकती हूँ ना, पाई माइनस पाई बाई 3, राइट? Now this sine 90 sine sorry 180 minus pi by 3, 180 minus theta क्या होता है? Tell me very fast. 180 minus theta. मैम साइन Here I am showing you formula. Sine 180 plus theta is minus sine theta. Okay. And if you find out sine 180 minus theta, which is only sine theta. Okay. So pi minus x, pi की वैल्यू कितनी 180 है, तो sin pi minus theta क्या हो जाएगा? Sin theta. साइन थीटा। तो here, yes, here it is theta. ये जो pi by 3 कुछ भी हो ना, pi minus आप कर रहे हो तो ये theta हो गया, तो sin pi minus theta इसमें sin theta. थीटा क्या है? pi by 3.
सो पाई बाई 3 की अभी वैल्यू तो हमने जस्ट बताई √3/2, तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी √3/2, right? So it means there are two principal solutions of this general equation. So you can write now, hence principal solution are, जो x की वैल्यू होगी वो क्या क्या हो सकती है, फर्स्ट π/3 एंड सेकंड क्या हो सकती है, √3/2. 2π/3, नो दिस Root नॉट, 3/2. Yes, ma'am. Yes, ये ma'am. होंगे जो आपने फाइंड आउट किया ना, दिस इज अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन. One more question I am taking so that you 2 can pi. understand how to find the principal solution of any equation. Now this is a question, okay, question number second, and here if you have an answer, what will be the answer of this question, then you can say. We have question 10x is equals to -1/√3. Now you tell me -1/√3 किसका होता है? मैम 10 का. कौन सा 10 बताओ. 1/√3 किसका होता है, पहले आप मुझे ये बताएंगे. 1/√3 किसका होता है? You मैम know 30 डिग्री का. 10/30 का. 10/30. Okay. मैम 10/30. हाँ 10/30. तो it 30 means we degree. can write here π/6. 30 डिग्री को क्या कहते हैं? π/6. 0.6. उसको Yes, ma'am. रेडियन में बताने होते हैं. Pi रेडियन upon 6. π/6. Yeah. So 10 π/6 is equals to 1/√3. It means when we will take Yes, ma'am. 10 pi minus π/6, we are taking as 10 pi minus theta. Okay, so 10 pi minus अगर मैं थीटा लेती हूँ तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, सेम ही होती है, बट एक्चुअली ये किस में होते हैं, -10 में होते हैं. जैसे अभी हमने बताया आपको sin pi minus theta sin theta, sin pi plus theta minus sin थीटा. सो हेयर Minus 10 पाई माइनस थीटा की जो वैल्यू होती है वो -10 थीटा होती है. तो थीटा यहाँ पर क्या है, π/6. सो वी कैन टेक π/6. नाउ -π/6, और π/6 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो हम यहाँ पर लिख 1/√3. सकते हैं -1/√3. तो एक तो आपने जो फाइंड आउट करा वो तो फर्स्ट सोल्यूशन हमारा ये हो गया, दिस इज अ फर्स्ट सोल्यूशन एंड वी आर टेकिंग एज एन आंसर व्हिच इज π minus π/6. तो हमारे एग्जैक्ट आंसर आ गए जो हमें चाहिए थे. ओके, इफ आई टेक अनदर वन सोल्यूशन देन व्हाट वी कैन टेक, जैसे आपने उसमें भी किया था 2 पाई लिया था, तो यहाँ पे भी आप चेकआउट कर सकते हो 2 पाई minus π/6, बिकॉज 2 पाई 5/6. माइनस थीटा क्या होता है. So 10 2 pi minus theta is -10 theta. Minus ये आपको 10. फॉर्मूला लर्न रखना है. पाई माइनस थीटा इज -10 थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो -10 थीटा. ओके, Minus इसकी 10. वैल्यू तो अभी जस्ट हमने फाइंड आउट की -1/√3, तो ये भी -1/√3 आ गए. इसका मीन कौन कौन से सोल्यूशन होंगे इस x के प्लेस पे. सो हमने x के प्लेस पे क्या लिया, पाई माइनस Pi π/6, minus और π/6. दूसरा हमने लिया 2 2 pi पाई minus माइनस 6. π/6. 5 minus 5/6. यस, सो जनरल सोल्यूशन जो इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन होगी वो क्या होगी, पाई माइनस π/6 को आप क्या लिखोगे, पाई पाई माइनस 6. 5 Isn't it 5/6. here? Yes, ma'am. So first is 5 π/6 and second one will be 6 2s are 6 to 12. 12. 12 minus 1 that is 11. 11. So 11 pi by pi 6. by 6. 11 pi So by 6. यहाँ से क्या समझ में आता है, यहाँ आपको लर्न क्या करनी है मैं आपको बता देती हूँ. आपको फर्स्ट तो पहले उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी की, वैल्यू किसकी दी हुई है. ओके, Yes, ma'am. चलो मैं एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेती हूँ, सेम क्वेश्चन लेती हूँ एक्सरसाइज से, तो आप मुझे यहाँ पर बता पाएंगे and then we Okay, will ma'am. proceed in some other question. Say the question please if you have book. Exercise 3.4. First question. Find the principal and general solutions. Okay, is equals to 10x is equals to √3, and here you have to find out the principal solution. √3 किसकी वैल्यू है ये तो आप बता सकते हो, किसकी होती है. Ma'am, 45. 45. So 45 को आप क्या लिखते हैं, 10 पाई अपॉन Pi upon ma'am, क्या होता है 4. 3. 3 3 3 4. पाई अपॉन 3 नहीं, 4, पाई अपॉन 4 is 45 डिग्री.
सो 45. पाई अपॉन 3 की वैल्यू √3 होती, पहले हमने इतना बताया. फिर इफ आई टेक अनदर वन, लाइक अगर मैं ले लूं इसकी जगह पे जो भी, देखो आप यहाँ पर 2 टर्म्स में आप ले सकते हो, या तो आप चेक कर मैम पाई बाई 4 60 होता है. पाई बाई 3 इज 60 डिग्री. ओके 60. यस मैम. क्यों? क्योंकि 180 पाई इज 180 ना, 180 अपॉन अगर आप 3 करते हो, आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टेबल लर्न करवाए थे, तो ये 60 Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, 60 डिग्री. सो 10 पाई, अगेन आई एम टेलिंग यू, 10 पाई माइनस थीटा, अभी जस्ट बताया मैंने क्या होता है. minus 10 x 10 theta. Okay, now 10 2 pi minus theta. Minus 10 This theta. is also, Yes, ma'am. yeah. Now in terms of 10, one more, 10 pi plus theta. Pi plus theta. Yeah, this is Ma'am, x. 10 theta आप 10 x ले theta. रहे हो तो आप x लिखोगे. Yes, ma'am. 10 theta होगा इसका. This is 10 theta exactly. Sorry, in terms of x you will reply the answer. Ma'am, So x, 10 ma'am, pi x. plus theta is 10x. So it means here if we will change into, हमें तो x 10 थीटा की वैल्यू √3 दी हुई है, √3 तो आपको यहाँ पर चेकआउट करनी थी. तो नेक्स्ट हम ले सकते हैं, हाँ नेक्स्ट हम ले सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3, बिकॉज पाई प्लस थीटा की वैल्यू 10 थीटा होती है, 10 थीटा तो दी हुई है √3, यही तो हमें आंसर लाने थे. सो नाउ वी कैन राइट पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू, फर्स्ट तो हमने फाइंड आउट कर लिया 10 पाई बाई 3. नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं 10 पाई प्लस पाई बाई 3, इसको क्या लिख सकते हो 10 पाई प्लस थीटा विच इज 10 थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है मैम इसकी √3. √3 एग्जैक्टली. सो यहाँ पर जो आपकी जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होंगे वो क्या होंगे. फर्स्ट इज पाई बाई 3, एक्स की Pi वैल्यू by आपने 3, पाई ma'am. बाई 3 लिया. Yes, ma'am. एंड सेकंड इज मैम पाई प्लस दूसरा पाई होगा बाई, इसके pi जितने plus भी pi होंगे by. पॉसिबल वो सारा आप चेकआउट कर सकते हो. सो पाई अपॉन 3 और सेकंड आपका हो जाएगा Pi plus 3. पाई प्लस Pi. पाई बाई 3. सो 3 पाई प्लस पाई कितने होंगे 4 पाई. मैम 4 4 pi. pi by 3. 4 पाई बाई 3. यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक आपको बता देती हूँ. मेनली आपको क्या लर्न रखनी है, पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा एंड पाई माइनस थीटा. सो दैट मेनली फोर ऑल्टरनेट फॉर्मूलाज जो हैं 10 के वो आपको लर्न होने चाहिए. एंड जैसे भी आपके RHS होंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसके प्रिंसिपल सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे. ओके, सो इन दिस क्वेश्चन मेनली आपको बतानी थी इसकी प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या होगी. एंड इफ वी टॉक अबाउट जनरल सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको जनरल सोल्यूशन भी निकालनी है. ओके, सो नाउ 10x इज इक्वल्स टू क्या हमने लिखा है √3. √3 मैम. प्रिंसिपल सोल्यूशन तो हमने बता दिया, फर्स्ट का आंसर, जनरल सोल्यूशन बताने थे. 10x इज इक्वल टू √3, सो वी कैन राइट हियर 10x इज इक्वल्स टू 10 में किस कौन सी थीटा की वैल्यू √3 होती है, तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू होती है, तो हमने पाई बाई 3 लिख दिया. ओके, दिस 10 इज कैंसलिंग, 10 तो कैंसिल हो गए. तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, आई एम टेलिंग यू, इन टर्म्स ऑफ 10 जब भी हम लेते हैं तो 10 होता है n पाई. ओके, n पाई, एंड जो भी उसकी वैल्यू आती है वो आप प्लस करते हो. तो मेनली आप इसको इस टर्म में लिखोगे बिकॉज दिस इज n जो आपके होंगे वो जितने भी इंटीजर्स होंगे. ओके, यहाँ n इंटीजर्स को बिलोंग करता है तो हम ले सकते हैं n पाई, बिकॉज वी आर एडिंग हियर. प्लस में भी हम लिख सकते हैं पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 को भी चेक कर सकते हैं क्या उसके आंसर आ रहे हैं, लेकिन 2 पाई प्लस पाई बाई 3 तो -10 होता है, तो -√3 तो आंसर थे नहीं, इसलिए हमने नहीं लिया. बट जो आंसर जो मेनली जनरल इसकी सोल्यूशन होगी वो होगी n पाई प्लस, यहाँ पर हमने क्या लिखा है पाई बाई 3, सो पाई बाई 3. नाउ दिस इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ ओके दिस गिवन इक्वेशन. तो ये आपकी होगी जनरल सोल्यूशन. यू गॉट दिस पॉइंट, हाउ विल यू कन्वर्ट इट. जब भी 10 में होंगे तो n पाई आप लोगे और जो भी आंसर होंगे उसको प्लस के फॉर्म में आप उसको शो करोगे. तो ये जनरल सोल्यूशन हो गई. Should I take one more question here? Yes, sir. Or you can do the rest one. Yes, ma'am.
इट्स ओके, आप आगे ट्राई करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगी, फिर आप क्या ट्राई करेंगे। Yes, ma'am. रेस्ट क्वेश्चन हाँ आप खुद ट्राई करोगे, अगर डाउट होगी तो कल तो हम करेंगे डिस्कस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज theorem. Today we will learn about some 2-3 theorems which will help you to solve 3.4 exercise here. And what is theorem? अभी जो मैंने जनरल सोल्यूशन बताया ना, प्रिंसिपल सोल्यूशन तो समझ में आ रहा है, बट जनरल सोल्यूशन हो सकता है मे भी नहीं समझ में आ रहा हो, तो ये अगर थ्योरम आप समझ लेते हो तो जनरल सोल्यूशन क्या होंगे, क्यों होंगे 2n+1, क्यों होंगे n पाई, तो वो आपको बात समझ में आ जाएगी। For any real number x and y, if any two real numbers are there and sin x is equals to sin y, we have only, पता है आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सिर्फ 3 टर्म्स में गिवन होंगे, या तो वो साइन के टर्म में गिवन हो सकता है, तो कॉस में होगा, या तो आपके 10 में मेनली गिवन होता है। अगर उसके अलावा भी होते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, उसके जस्ट ऑपोजिट आपको लर्न करनी है। सो साइन कॉसेक का सेम होगा, ठीक है, कॉस सेक का सेम होगा, साइन कॉस इज सेम, सॉरी कॉसेक इज सेम, कॉस सेक इज सेम एंड tan एंड कॉट इज सेम। सो यहाँ हम साइन के टर्म में बता रहे हैं, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, sin x is equals to sin y implies x is equals to n pi plus -1 power n y, where n is belongs to Zero. which integers, right? Yes, ma'am. Yeah. So sin x is equals to sin y दिए हुए हैं, और हमें प्रूव क्या करनी है, हमें प्रूव करनी है x is equals to n pi plus -1 power n pi। तो जब भी sin x and sin pi होंगे तो उस टर्म में हमारी x की वैल्यू क्या होगी, और जो x की वैल्यू मैं अभी फाइंड करूंगी वो साइन के जनरल सोल्यूशन होंगे, ठीक है। सो हियर sin x minus sin y, sin x is equals to sin y, which is given in the question, sorry, in this theorem. Now when you will transpose it, so what will be your equation? Sin x minus sin y is equals to 0. Now you tell me sin x minus sin y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2. तो हमने sin x minus sin y के प्लेस पे इसकी फॉर्मूला को पुट किया, इज इक्वल्स टू 0 लिखा, यहाँ तक तो समझ में आ गए। नाउ आप cos 2y plus 2, ओके, इस कंप्लीट को, इस 2 को ट्रांसपोज करोगे तो 0.2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो cos x plus y by 2 इज इक्वल्स टू, आप 0 लिख सकते हो, तो फर्स्ट हमने इसको 0 की इक्वेट करे। नाउ हमने sin x minus y को भी 0 के जस्ट इक्वल लिखा। When we have equated both that cos and sin, then what we are getting, cos x plus y by 2 is equals to 0 है, and sin x minus y by 2 is equals to 0। तो यहाँ पर जो x plus y upon 2 होंगे, ओके, cos में किसकी वैल्यू 0 होती है? तो you know that cos 0 is 1 and cos 90 की वैल्यू, isn't it here? 0 होती है। हाँ, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमने 90 की वैल्यू पाई अपॉन 2, 90 को आप क्या लिखोगे रेडियन में, पाई अपॉन 2। तो में यहाँ से दोनों साइड से cos कैंसिल हो जाएंगे, तो पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, ये 2n+1 क्या है? दिस इज एक्चुअली, ये आपको जब भी आपको इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, तो आप यहाँ पे आप cos के टर्म में ना 2n+1 का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। इट मींस 2 पाई आप का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, तो 2n पाई अपॉन 2 प्लस पाई अपॉन 2, इस फॉर्म में आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके लिए जनरल आपको ये लर्न रखनी है, जब भी cos x इज इक्वल टू 0 दी हुई होती है, तो जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, 2n+1 पाई अपॉन 2 cos के टर्म में, ओके। तो इसलिए हमने क्या करा, हमने उसको उस फॉर्म में आंसर फाइंड आउट किया। नाउ व्हेन sin x इज इक्वल टू 0, तो इसकी जनरल सोल्यूशन जो होगी, x की जनरल फॉर्म वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू n पाई। तो साइन के टर्म में आपको n पाई लेने हैं, एंड cos के टर्म में आपको 2n+1 पाई बाई 2 लेने हैं, ठीक है। बिकॉज साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, एंड यहाँ पे पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होगी, एंड हियर यू हैव टू टेक एन एज एन इंटीजर, जिसकी वैल्यू 0 आ सकती है, वो n पाई के फॉर्म में होंगे। और जो दूसरे होंगे ये हमने प्रूव किया था या फिर बोला था आपको एक बार चेकआउट कर लेने को कि कैसे प्रूव होंगे। एंड नेक्स्ट इज 2n+1 पाई बाई 2, यहाँ आप लर्न कर लो सिंपली, sin x is equals to 0, then x की वैल्यू n पाई, cos x is equals to 0, तो x की वैल्यू 2n+1 पाई बाई 2. So that's why we have written here, cos को हमने लिखा है 2n plus pi by 2, इसकी वैल्यू 0 होती है। Now
in LHS x plus y by 2, this 2 cancel, ये 2 cancel Yes. हो गए, हमें तो यहाँ से x की वैल्यू बतानी थी. ओके, इन दिस sin x minus y by 2, अभी जस्ट मैंने बताया साइन के टर्म में आपको n पाई लेनी है. ओके, यहाँ कोई 2 नहीं है डिनोमिनेटर में, so you can't cancel anything here. Yes. Now this x plus y by 2 is equals to this, ये 2 cancel हो गए. Then x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? You have to transpose this by to right hand Y. side. So we have transpose, we have One written more. as it is this RHS and y को transpose कर दिया तो माइनस हो गया. ठीक है, right? Now x is equals to 2n plus 1 pi plus ये जो y की वैल्यू है, जब भी आप cos के टर्म में फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो y की जो वैल्यू है वो क्या होगी? -1 Minus 1. 2 power n plus 1. Okay. Okay, this value you Yes. have to learn in place of this y. जो y की वैल्यू होगी -1 power 2n plus 1. And now here, ये तो मैंने किसके टर्म में बताया आपको? cos के टर्म में बताया. Okay. Cos के term. Here this x minus y upon 2 is equals to n pi. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये मल्टीप्लाई होंगे तो 2n पाई हो जाएंगे. 2 y n x माइनस में थे तो ट्रांसपोज करने plus. पे प्लस में हो जाएंगे. तो यहाँ तक तो ये समझ Yes. में आ गया हमने x की कैसे फाइंड करी. नाउ दिस 2n plus 2n पाई प्लस y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ साइन, अगर हम जो साइन लेते हैं वो सिर्फ 2n लेते हैं. क्या लेते हैं? 2n. व्हाई आई एम 2n. टेकिंग दिस? बिकॉज जो आप साइन की वैल्यू फाइंड करते हो ना, लाइक √3/2 1 -1 0, सो एक्चुअली उसकी पावर 2n होगी, उतनी ही लिमिटेड वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है. तो इसलिए हम उसको इस फॉर्म में शो करते हैं. तो y की वैल्यू होगी -1 2 पावर n एंड इन टर्म्स ऑफ कॉस -1 2n plus 1. बिकॉज कॉस में हमने क्या लिखा है? 2n plus 1 लिखा है, तो हमने इसलिए इसकी पावर 2n plus 1 कर दिया. नाउ हियर इसकी पावर, इसका हमने क्या बताया? मेनली n के टर्म में बताया, तो इसको हमने 2n के टर्म में शो किया. लेकिन यहाँ पे मेनली आपको ऐसे लर्न रखनी है कि इसकी वैल्यू इतनी होती है. सो व्हेन वी विल कंबाइनिंग दीज टू रिजल्ट्स, जब इस दोनों इक्वेशन को जब कंबाइन करोगे, व्हाट वी विल गेट? n पाई प्लस -1 पावर n y. दोनों को कंपेयर करोगे तो इट मींस दोनों को सॉल्व करने हैं. नेक्स्ट जो भी इसके कॉमन पॉइंट्स होंगे, बिकॉज ये दोनों x क्या है? इक्वल है, तो आप इन दोनों को इक्वेट करोगे. तो यहाँ से अगर इन दोनों को इक्वेट करोगे, सो दिस 2n पाई एंड 2n पाई, यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. राइट नाउ 1 इंटू पाई को आप क्या लिख सकते हो? पाई लिखोगे. राइट सो मेनली यहाँ पर जो वैल्यू जो फाइंड आउट हो रही है, क्या फाइंड आउट हो रही है? n पाई प्लस इसको भी जब सॉल्व करोगे आप तो आपके आंसर होंगे -1 पावर n. सो इट मींस आफ्टर कंबाइनिंग दिस रिजल्ट वी आर गेटिंग दिस एज एन आंसर. तो यहाँ पर क्या समझ में आता है? जब भी sin x इज इक्वल टू sin y होंगे तो x की वैल्यू n पाई प्लस -1 पावर n y. तो आपको इस वैल्यू को यूज करनी है फॉर फाइंडिंग द जनरल सॉल्यूशन. नाउ द थ्योरम सेकंड आई एम टेलिंग यू, इट इज आल्सो सेम एज दिस फर्स्ट, बट यहाँ पर टेन की साइन की प्लेस पे क्या है? कॉस दिया है एंड हमें x की वैल्यू ये सॉल्व करनी है. तो फर्स्ट में आपको क्या लर्न रखनी है? व्हेन sin x और sin y इक्वल होते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है? n पाई प्लस -1 पावर n y. ओके, अगेन आई एम टेलिंग n पाई plus -1 power n y. And here when cos x is equals to cos y is given, then x is equals to 2n pi plus minus y. ये सिंपली आपको लर्न रखने हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लर्न रखना. 2n pi होंगे प्लस माइनस y. ये कैसे फाइंड आउट होगी? cos x equals to cos y is given, ट्रांसपोज करने के बाद ये माइनस हो जाएंगे. नाउ टेल मी गौतम एंड दीपांशु, whoever know the formula, cos x minus cos y का क्या होता है? What is the formula of cos x minus cos y? दीपांशु बताओ. Ma'am, cos x into sin y. आगे को आप पढ़ रहे हो, पीछे प्लीज डोंट फॉरगेट, बिकॉज दैट ऑल बैक theorem formulas will be the more, I mean will work for solving the further exercise or chapters, so please don't forget. Yes, ma'am. cos x minus cos y, Ma'am, 2 cos x sin minus cos y का होता है -2 sin minus x 2 plus y, sin x plus y divided by upon 2 2. sin x minus y divided by 2. Exactly. तो we have written this thing, okay? Sin cos x minus cos y की जगह पे हमने इसके फॉर्मूला लिख दिया. 2 sin x
प्लस वाई बाई टू इंटू कोसाइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। सिमिलरली यहाँ पे -2 को ट्रांसपोज करोगे तो ये जीरो हो जाएंगे, तो अभी आपको साइन एक्स प्लस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो लिखनी है। सेकंड जो होगी वो साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो होगी। ओके, साइन के टर्म में मैंने आपको क्या बोला था, एन पाई लेने को, तो हमने एन पाई लिया है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2n पाई, राइट। सो x की वैल्यू बतानी थी तो पाई आपको ट्रांसपोज करने होंगे, तो x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन फाइंड कर ली, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन इसे फाइंड कर लिया उसकी हेल्प से। सेकंड जो आपकी क्या है, साइन x माइनस वाई बाई टू इज इक्वल टू जीरो। साइन के टर्म में तो ऑब्वियसली एन पाई लेने हैं आपको, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई हो गए। ओके, नाउ जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हेयर वन इज माइनस अनदर वन इज प्लस, दोनों सेम आंसर है। So after combining these two results, what we will get? We will get the same 2n pi, और ये प्लस माइनस a माइनस बी a प्लस बी इंटू में करेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी a माइनस बी। तो मेनली क्या है, ये दोनों के फॉर्म में आंसर है, तो आप उसी को वापस फॉर्म में लिख सकते हो, 2n pi plus minus y we are getting when we are comparing these two results. Is this clear now? Second one. Yes, ma'am. Yes. हाँ, मैं आपको बता देती हूँ, क्लियर तो नहीं, आप इसको आज थोड़ा रिवाइज कर लोगे जो भी आज आप लर्न कर रहे हो। रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हम क्या पढ़ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना पढ़ते हैं उतने माइंड में आने चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट। सो सिमिलरली हियर थ्योरम 3 इज आल्सो द सेम। ओके, सो यहाँ ये भी सेम ही है, आपको दी हुई है। तो इसमें क्या है, अभी 10 के टर्म में हो गया। अभी हमने साइन कॉस लर्न किया, जब अगर 10 when 10x is equals to 10 by होगी तो x की वैल्यू क्या होगी, this n pi plus y. Why I'm telling this? Again I am saying जो 3 theorems हैं वो important है for solving rest questions। अभी जो हमने बताया आपको और उसके अलावा जितने questions हैं वो इसी 3 theorems पे based हैं, तो इसलिए ये 3 theorems important है आपको सॉल्व करने के लिए। तो अगर 10 के टर्म में दिए हुए होते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी, n pi plus pi. So n pi plus y we have to show here. Similarly जैसे अभी तक आपने करा है, दोनों थ्योरम को करा है, 10y को आपको ट्रांसपोज करनी है। We are having 0 10x minus 10y. Actually 10x minus 10y का फॉर्मूला तो मैंने नहीं बताया था, but what we are doing here, मैंने एक्चुअली क्या करा है, sin x 10x को आप लिख सकते हो sin x into cos x, right? So 10x को मैंने sin x into cos x and इसको इस टर्म में मैंने लिख दिया लाइक cos y को मल्टीप्लाई करा, and here 10 y को मैंने लिखा है sin y into cos y and here cos x से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इट मींस दोनों के डिनोमिनेटर को मैंने cos x into cos y से मल्टीप्लाई किया, तो जब मल्टीप्लाई करा तो ये फॉर्मूला कंप्लीटली हो रहा है। ये फॉर्मूला किसको शो करता है, ये फॉर्मूला शो करता है sin x माइनस y को शो करता है। कैसे शो करता है, ये मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन बताया था आपको। Just 1 minute, I'm showing you that question. You can see here, ये आपको प्रूफ करनी थी, तो 10x माइनस 10y को आपने क्या प्रूफ किया था, sin x माइनस y को 10x माइनस 10y आपने प्रूफ किया था। यस, सो इट मींस नॉट sin x माइनस sin y, sin x माइनस y। ठीक है, तो आप इसके प्लेस पे आप ये भी तो लिख सकते हो ना, sin x माइनस y। कैसे होंगे, तो आप इसको जस्ट यहाँ से अगर आप देखोगे तो वी आर गेटिंग दिस LHS। सो हम RHS से LHS फाइंड कर रहे हैं, तो हमने इसको यहाँ पे क्या कर रहा है, इस कंप्लीट LHS को हमने इस फॉर्मूले में हमने ब्रेक कर दिया, sin x माइनस y इज इक्वल टू 0। नाउ हियर 0 की मैंने आपको बताया कि 0 जब साइन के टर्म में हमें क्या लेने हैं, n पाई लेने, तो हमने n पाई लिया, तो sin x माइनस y इज इक्वल टू sin n पाई, sin कैंसल हो गए। नाउ वी आर हैविंग दिस x माइनस y इज इक्वल टू n पाई। हमें x की वैल्यू बतानी थी, तो y को क्या करनी होगी, ट्रांसपोज करनी होगी। जब हमने y को ट्रांसपोज किया, नाउ वी हैव प्रूव्ड इट, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? Theorem, it is not question. Okay, now we have question, and जो भी हमने थ्योरम लर्न किया है, मैं एक क्वेश्चन आपको बताती हूँ जिससे आप सारे जो क्वेश्चन एक्सरसाइज के आप ट्राई कर पाओगे। सो मेनली आज जो मैं आपको दे रही हूँ थ्योरम, जितना भी आज आपने लर्न किया है, these 3 थ्योरम्स आपको नोटबुक में करनी है, ओके, इंक्लूडिंग योर सम क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइजेस क्वेश्चन। Now the question is, find the solution of sin x is equals to root 3 by 2.
सो साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 इज गिवन. हमें इसकी सिंपली सोल्यूशन बतानी है यहाँ पर. हाउ वी कैन गेट इट? नाउ टेल मी √3/2 किसका होता है वैल्यू? जस्ट इससे पहले हमने बताया था. या सो हियर एक्चुअली आपको सिर्फ सोल्यूशन बतानी है, नॉट द प्रिंसिपल सोल्यूशन, नॉट द जनरल सोल्यूशन. सो वी हैव व्हाट वी हैव, sin x इज इक्वल्स टू, मैं इस क्वेश्चन को बता देती हूँ जिससे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होंगे. तो sin x इज इक्वल्स टू -√3/2. ओके, नाउ एक्चुअली जो साइन √3/2 किसकी वैल्यू होती है? पाई की वैल्यू होती है. बट हमारे पास तो माइनस है, नेगेटिव में है. तो इट मीन्स आप अगर नेगेटिव लेते हो माइनस साइन पाई/3 तो ये -3/2 रिजल्ट शो करेंगे. Isn't Yes, it here? ma'am. So we can write Yes, now. ma'am. अभी इसको हम लिख सकते हैं. Yes, ma'am. इसको आप क्या लिख सकते हो? Tell me. माइनस साइन पाई/3 को अगर आप इसको किसी और टर्म में अगर लिखोगे तो लाइक साइन पाई प्लस पाई/3. Pi minus. Yes, ma'am. ओके, साइन पाई प्लस पाई/3 मैंने क्यों लिखा? बिकॉज साइन पाई प्लस पाई/3 की वैल्यू होती है साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा. तो can't we do equal both that equation? कर सकते हैं. Yes, ma'am. इस √3/2 को मैंने माइनस साइन पाई/3 लिखा बिकॉज पाई/3 की वैल्यू √3 होती है. और दूसरा मैंने क्या देखा कि पाई माइनस साइन थीटा चाहिए, तो उसकी किसका फॉर्मूला है? साइन पाई प्लस थीटा. सो पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा. तो हमने इसके प्लेस पे लिख दिया. इट मीन्स अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या होंगे? साइन 4 पाई/3. ओके, साइन 4 पाई/3. नाउ व्हाट वी कैन डू, अभी आप इस प्लेस पे कंप्लीटली √3/2 की जगह पे इफ आई राइट